Today's topic is business correspondence. What is the meaning of business correspondence? What are the types of business correspondence we are doing in this chapter? First, before types of business correspondence, what is the meaning and importance of business correspondence? If I say it is the most convenient way to reach out the people is by sending message through text or letter. These are a few types of business correspondence used in a business. जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है डिफरेंट सिचुएशन में रह के। तो डिफरेंट सिचुएशन में रह के आप कौन सा कॉरेस्पॉन्डेंस यूज़ कर रहे हो, कौन सा बेस्ट वे है, तो वी कॉल दिस एज द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस. लेट अस गेट ourselves familiar with this business correspondence. Suppose मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. इफ़ यू आर गिवन अ कोर्स प्रोजेक्ट एट योर कॉलेज, देयर आर 6 people in each respective group. Suppose you and your 5 other friends decided to go for a topic. How will you contact them? Is it always possible to meet them? Like in this corona situation, is it possible to meet them? Is it always possible to talk them on call? Suppose you want to ask something to your professor and he is not in the same town that time, and how will you clear your doubt? Will you wait for him to return? No, you can reach to them by texting them or writing emails. So what are the ways you are using? Just as we express our views, opinion, thoughts, idea through writing. सो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कैसी टाइप हुई? हमारी राइटिंग स्किल्स, हम राइटिंग के थ्रू किसी के पास अपने आइडियाज, थॉट, व्यूज और ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहे हैं. बिजनेस पर्सन ऑल्सो फील द नीड ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ. It is not always possible for them to remember each and every detail in the business. So the simplest way of expressing that is written correspondence. Written correspondence in the business world is the business correspondence. तो meaning क्या हुआ exact? Any communication in the form of letter is correspondence. Any person related to business express oneself through business correspondence. One can also ask any doubt, any uncertainty through the business correspondence. बिजनेसमैन राइट करेगा, रिसीव करेगा लेटर इन हिज डे टू डे लाइफ. नॉट ओनली लेटर, ईमेल्स, कंप्लेंट लेटर्स, सप्लायर लेटर ऑफ इंक्वायरी, जॉब एप्लीकेशन लेटर्स आर सम एग्जाम्पल. तो इसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ? एक तो रिलेशनशिप रहेगा, एक एविडेंस रहेगा, गुडविल मेंटेन हो सकती है, इनएक्सपेंसिव और चीपेस्ट वे है कम्युनिकेशन का थ्रू ईमेल्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकती है, आपका बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल अब ये जो है कॉरेस्पॉन्डेंस होती है. सबसे पहले आता है बिफोर आई स्टार्ट अप विद द डिफरेंट टाइप्स लाइक इंस्ट्रक्शन, लेटर कैसे लिखना है, डायरेक्शंस कैसे प्रोवाइड करनी है, या मेमोस क्या होते हैं. देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स टू. लाइक फर्स्ट इज इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस. It refers a correspondence between the individual department or the branch of the same organization. इंटरनल का क्या मतलब है? जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप रह के काम कर रहे हो वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स, वहाँ के सुपीरियर, योर लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, या जितने डिपार्टमेंट है लाइक सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, अदर ब्रांचेस ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन यू आर कम्युनिकेटिंग थ्रू ईमेल, लेटर्स, मेमोज, और any way you are communicating in the written way is known as internal correspondence. What is the external correspondence? Is the next type of the business correspondence. It refers the correspondence between two individuals. Now, external mean not in the same organization. You are sending the correspondence out the organization, outside, like your customer, your supplier, your bank, educational institution, government department come under this category. Next, third type is the routine correspondence.
रूटीन कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या है, लाइक किसी ने इंक्वायरी डाली, किसी ने ऑर्डर किया, किसी ने इनविटेशन सेंड किया, अपॉइंटमेंट लेटर, ये डे टू डे जो है ट्रांजैक्शन हो रही है, इंक्वायरीज हो रही है या कोई सेल परचेज हो रही है, उसके फॉर्म में रिटर्न वे से आप कुछ दे रहे हो। नेक्स्ट है सेल कॉरेस्पॉन्डेंस। रिलेटेड सेल वर्ड से ही क्लियर है, आपने सेल लेटर लिखी, सेल रिपोर्ट्स बनाई, इनवॉइस बनाए, कंफर्म कर रहे हो किसी ऑर्डर को, डिलीवरी लेटर मिला आपको, ये इसके सेल्स कॉरेस्पॉन्डेंस का पार्ट हो गए। नेक्स्ट आता है पर्सनलाइज्ड कॉरेस्पॉन्डेंस। ये कुछ इमोशनल फैक्टर्स के साथ रिलेटेड है, जैसे आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हो, किसी को कुछ ग्रांटिंग वे से लिख रहे हो, तो वो आपके आगे पर्सनलाइज्ड कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इस तरीके से अब हम आगे करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड व्हाई। अगर हम बात करें, जैसे हम बोल रहे थे, ईमेल्स, मेमोज, रिटन कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कंफर्मेशन एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इन दिस सोल्यूशन जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, टेलीफोनिक कंफर्मेशन एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन is not a business correspondence. A correspondence is always in a written communication between two persons. Any oral communication is not a part of the business correspondence. Clear? Next, coming to the types of correspondence, there are some net etiquettes I will say that you have to follow up, like टेक्स्ट कैसे करना है, किसी को ईमेल कैसे करना है। सम टाइम आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे पीपल्स की स्टोरी होती है कि पीपल हु हैव बीन फायर्ड एंड कंपनीज दैट हैव बीन बायकॉटिंग फॉर मेकिंग ऑफेंसिव एंड इनएप्रोप्रिएट सोशल मीडियाज, उन्होंने मैसेज को इलीगल वे से डाला, तो वो वाइल्ड वेस्ट की तरह जो है वो रेगुलेशंस को फॉलो अप नहीं कर रहे। तो आपको कुछ गाइडलाइंस जो है वो हमेशा फॉलो करनी पड़ेगी। लाइक अगर मैं बोलूँ किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो इंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, आप उसको बता रहे हो कि टास्क कैसे कंप्लीट करना है, को वर्कर्स को गाइड कर रहे हो, उनको प्रॉपर डिटेल में बता रहे हो, डायरेक्शंस बता रहे हो कैसे करना है, किस डेस्टिनेशन में आपको कैसे पहुंचना है। लेकिन मेन जो काम आया, दैट इज द मेमोज, इज अ डॉक्यूमेंट विद इन a company. It is a short highlighted message और certain aspects के साथ आप इसको लिखते हो। मेमोज जो है, इसको मेमोरेंडा भी बोलते हैं, आर वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल डॉक्यूमेंट। Professional settings, memos are house document to pass along or request information or outline policies, present short report, proposed idea इसमें बता सकते हो। While are often used to inform, they can also persuasive document. A company or institution has its own house style or template that is used for documents such as letter and memos. तो यहाँ पे किसको लिखना है, कौन लिख रहा है, डेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आपको लास्ट में कुछ चीज़ें मेंशन करनी है, लाइक रीडेबिलिटी होनी चाहिए, मेमोज जो है इन लार्ज बोल्ड फॉन्ट, सब्जेक्ट लाइन क्लियर होनी चाहिए, वाई आई एम राइटिंग दिस, वो चीज़ें, बॉडी मैसेज कैसे लिखना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, नाइसली जो है ये फ्रेम अप होना चाहिए। तो मैं आपके साथ कुछ सैम्पल जो है वो साथ में शेयर करूँगी इसके नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट हमारा मेन पॉइंट आ जाता है ईमेल्स। आई थिंक यू ऑलरेडी, आप सभी ने कभी ना कभी ईमेल किसी ना किसी को की होगा। ईमेल जो है मोस्ट फॉर्मिलियर to the most students and the worker. In business, it has largely replaced print hard copies or letter for external correspondence in many cases. It taken the place of memos for internal communication. जब हम memos की बात कर रहे हैं तो हम internal communication की बात करेंगे। जब हम emails की बात करेंगे तब मे बी ये external भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, बट एक्सटर्नल में हम ईमेल्स जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं।
Email can be very useful for messages that have been slightly more content than a text message, but it is still best used for fairly brief message के लिए इसको यूज़ किया जाता है. Acknowledge communication from public or to remind associates that periodic reports payment के लिए. अब ईमेल में भी इनफॉर्मल इन पर्सनल कॉन्टेक्ट, बट जब आप बिजनेस कम्युनिकेशन के रिक्वायर में बात कर रहे हो तो आपको अटेंशन देनी है कि ईमेल जो है वो रिफ्लेक्ट करे यू एंड योर कंपनी एंड अ प्रोफेशनल टोन उसमें होनी चाहिए, बिकॉज आप थर्ड पार्टी को लिख रहे हो. Although email may have an informal feel, remember that when used for a business, it needs to convey professionalism, respect. Never write or send anything that you wouldn't want to read in a public or in front of your company president. तो वैसी आपको नहीं लिखनी. Open with a proper salutation के साथ dear sir, dear ma'am. Include clear, brief and specific subject line होनी चाहिए. क्लोज विद अ सिग्नेचर. अब आपको एब्रीवेशंस यूज़ नहीं करने. ब्रीफ होनी चाहिए, गुड फॉर्मेट होना चाहिए. रीड करो दोबारा से, री रीड, रिवाइज एंड रिव्यू. करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. रिप्लाई करो अगर किसी की मेल मिली तो प्रॉम्प्टली आपको उसको रिप्लाई करना है. अवॉइड यूजिंग ऑल कैप्स. Capital letters are used on to the internet to communicate. Empathetic imposition or yelling are considered rude. Text like links use करने हैं. किस टाइम पे मेल करनी है, टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है. फॉलो अप करते रहो. तो आपने देखना है ईमेल्स कैसे लिखते हैं. क्लियर. नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है मेमोज. क्लियर है आपको? और ईमेल लेटर्स क्लियर है. ईमेल क्लियर है. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है बिजनेस लेटर्स. लेटर्स जो है वो ब्रीफ मैसेज सेंड टू रिसिप्ट दैट आर ऑफन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. ये भी कभी हमें ऑर्गेनाइजेशन के जो बाहर हैं उनको लिखते हैं. दे आर ऑफन प्रिंटेड और लेटर हेड पेपर दैट रिप्रेजेंट द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन. इसको हम लेटर हेड पे लिखते हैं ताकि जो है easily आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल जाए. While email and text message may be used frequently today, but the business letter remain a common form of written communication. Although हम जो है ईमेल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू हो गए हैं, लेकिन बिजनेस लेटर्स भी जो है वो रिटन कम्युनिकेशन का बहुत कॉमन वे है. It can serve to introduce to potential employer, announce a product or services, even feeling emotionally like complaint letter डाल सकते हो, inquiry letter डाल सकते हो. There are many types of letter. आप इसको different forms, content, but this chapter represent the 15 elements of traditional block style letters. कैसे लिखनी है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है. कवर लेटर जैसे हमने किया था उसमें भी आपने देखा था कैसे उसको प्रॉपरली फ्रेम किया है. लेटर हेड और लोगो, इसमें सेंडर्स नेम और रिटर्न एड्रेस होता है. हेडिंग नेम एंड द रिसिप्ट ऑफन इंक्लूडिंग द एड्रेस. सैल्यूएशन, डियर सर, डियर मैम. यूज द रिसिपेंट नेम भी कर सकते हो, लाइक जैसे हमने कवर लेटर में किया था, डियर स्मिथ. नेक्स्ट आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी लैंग्वेज कैसे, कंक्लूजन कैसे देना है, सिग्नेचर लाइन कैसे करनी है. कीप इन द माइंड दैट लेटर रिप्रेजेंट यू एंड योर कंपनी इन योर एब्सेंस. आप उनके सामने नहीं हो, आप उनको लेटर सेंड कर रहे हो. तो लेटर जो है वो इफेक्टिव वे में होनी चाहिए, पॉजिटिव इमेज शो करती होनी चाहिए. साथ में पैराग्राफ होने चाहिए, फोकस्ड आइडिया होना चाहिए, कंप्लीट मैसेज होना चाहिए और एरर फ्री होनी चाहिए. तो आप इंक्वायरी लेटर, फॉलो अप लेटर्स भी लिख सकते हो. तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स है जो आप कर सकते हो. बट अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट मेथड है, तो कौन सा फॉर्मल मेथड है सबसे ज़्यादा, तो बिजनेस लेटर जो है वो सबसे ज़्यादा फॉर्मल लेटर है. देयर आर सम केस स्टडी, यू कैन रीड इट योरसेल्फ. थैंक यू फॉर योर लेक्चर.